फोर्स मतलब वो चीज को मैं जो धक्का दे रही हूँ उसको कहते हैं फोर्स। तो वर्क, फोर्स एंड एनर्जी दे आर कोरिलेटेड विथ ईच अदर। मीन्स इफ यू वांट टू डू वर्क वी नीड एनर्जी एंड वी नीड फोर्स। Understood? So we will see in this lesson how work, force and energy are correlated with each other. Now see, what is a work? Do you think that work is being done in म्यूटियर्स दिए हैं? यहाँ पे क्या कर रहा है? एक बच्चा पढ़ रहा है, तो ये कुछ वर्क कर रहा है क्या? Yes, he is doing some work, मतलब वो पढ़ रहा है, he is reading a book। यहाँ पे टीवी देख रहा है, वो भी कुछ काम ही है ना, वो एक वर्क कर रहा है, देखने का काम कर रहा है, he is watching the TV। और यहाँ क्या कर रहा है? he is pushing an अलमीरा, एक कबर्ड को पुश कर रहा है, अलमीरा को पुश कर रहा है, मतलब he is doing a work। But in some work no energy is required। अभी जैसे ये पढ़ रहा है, ठीक है, वो मेंटल एनर्जी उसको लग रहा है, बट फिजिकल एनर्जी उसको लग रहा है क्या? नो। इन वॉचिंग अ टीवी does he is using a physical energy? No, सिर्फ वो देख रहा है, काम कर रहा है, but he is not using any force nor he using any energy। But in this third picture, while pushing a cupboard or almirah, he is applying force also and energy is also required here। तो there are certain work, कुछ वर्क ऐसा होता है जिसमें फोर्स और एनर्जी नहीं लगता है, only work is done। Okay, now see, you may feel that you are doing type of work, but in the terms of science no work being done is surprise। According to science, work is done only when an object or body moves through a distance। When there is no movement in an object we say that no work is done। अभी क्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि watching TV he is doing a work, reading a book he is doing a work, but in the term of science जब तक कोई चीज जगह से हिलता नहीं, एक जगह से दूसरे जगह, और जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होता है तब तक बोलते हैं नो वर्क इज डन। इन टर्म ऑफ साइंस आई एम टेलिंग, बट इफ यू वॉच जनता है कि जब हम कुछ भी कर रहे हैं, आइदर वी आर ईटिंग फूड, रीडिंग बुक और वॉचिंग टीवी, वी आर डूइंग सम वर्क। बट इन टर्म ऑफ साइंस whenever a object is moved from one place to another then only work is done। मतलब साइंस बोलता है जब तक एक चीज एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं हिलता है और फोर्स एनर्जी अप्लाई नहीं होता है तब तक वर्क इज नॉट डन, मतलब काम नहीं हुआ है। दिस इज इन टर्म ऑफ साइंस। नाउ सी व्हाट इज फोर्स। In order to move a chair or lift a book you need to push or pull the object to make it move। ठीक है, अगर हमें ये किताब उठाना है यहाँ से तो मैं क्या कर रही हूँ? आई एम पुलिंग, मैं इसको उठाई हूँ। इफ आई वॉन्ट टू मूव समथिंग जैसे डेस्क या बेंच देन आई एम पुशिंग इट। ठीक है, द ऑब्जेक्ट टू मेक इट मूव। द पुश और पुल दैट इज नीडेड टू मूव ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जो भी पुश या पुल कर रहे हैं, मतलब ये चीज मैं यहाँ से उठा रही हूँ, दैट मीन्स आई एम अप्लाइंग फोर्स टू दिस बुक। आई एम पुशिंग अ ऑब्जेक्ट, मैं कोई भी चीज धक्का दे रही हूँ, मतलब आई एम अप्लाइंग अ फोर्स टू दैट ऑब्जेक्ट एंड इट इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अ सर्टेन प्लेस। If equal forces act in opposite direction of an object, there is no change in the object on its position। Like in the picture shown aside, when you push a wall or the wall pushes you with the equal and opposite force, thus the force are acting in the opposite direction and the wall does not move, so no work is done। अभी जैसे मैं एक कोई चीज को धक्का दे रही हूँ और अगर वो वहां से हट रहा है that means I am applying force and the work is done। पर अभी मैं इसको धक्का मार रही हूँ दीवार को या बोर्ड को, is this moving? ये मूव हो रहा है क्या? ब्लैक बोर्ड या आपका दीवार घर का? No, it is not moving from one place to another, that means no work is done। Understood everyone? What is force? When we apply force to an object and the object is moved from one place to another, that means the work is done and that force what we apply is known as a frictional or a transit force। Understood? यहाँ तक सबको समझ गया? और stop। When you throw the ball on the ground and opposite force acts on it, the opposite force shows down or stops the ball, this force is called friction। क्या होता है? आप take a ball,
ठीक है, आप खेलते हो बॉल से, जब आप बॉल एक जगह से फेंकते हो दूसरे जगह, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, द बॉल रोल्स डाउन एंड इट स्टॉप्स एट सर्टेन, एक जगह में जाके रुक जाता है। क्यों रुकता है वो क्यों रोल होते ही नहीं रहता है? बिकॉज द ग्राउंड अप्लाइज अ सर्टेन फोर्स, मतलब यहाँ से आपने फोर्स लगाए एंड ग्राउंड से सिमिलर फोर्स इज एक्टेड बाय द ग्राउंड, और उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन। मतलब when you throw or when you apply force to certain object और दूसरा फोर्स से वो ऑब्जेक्ट स्टॉप होता है, तो उस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और वो जो जिसने स्टॉप किया है वो फोर्स किसने अप्लाई किया है? द थिंग वेयर यू हैव थ्रोन, मतलब आपने ग्राउंड में अगर थ्रो किया है तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ से आया है? थ्रू ग्राउंड। ठीक है, और उसने क्या किया ऑब्जेक्ट को? इट एक्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड एनहांस इट टू स्टॉप। मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया टू थ्रो द बॉल एंड द ग्राउंड हैड अप्लाइड द अपोजिट फोर्स टू स्टॉप इट, सो दिस फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मींस दिस टू फोर्स दे एक्ट इक्वली ऑपोजिट, means you have applied to throw and the ground has applied to stop, so this force is known as force of friction, and these two force acts equally and in opposite direction. Understood everyone? Now see, the force which is able to slow down the movement of an object is known as friction. Just now I told, कोई भी चीज को, कोई भी थिंग को स्लो डाउन करने के लिए जो फोर्स एक्ट होता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपने अगर एक चीज यहाँ से धक्का देके वहां पे धकेले तो वो जाके एक सर्टेन जगह पे रुक जाता है, तो वो जो रुका है, जो फोर्स से वो रुका है, उस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अंडरस्टूड? बिकॉज इट हैज बीन अप्लाइड देयर टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, सो दैट द force that is applied to slow down or stop the object is known as force of friction. Understood? Now see, friction depends upon the type of surface that causes it. The greater the friction, the faster the body stops moving. मतलब वो आपके सरफेस पे डिपेंड होता है। जैसे अगर एक प्लेन सरफेस है, वहां पे आपने कुछ फेंका है, you have thrown a ball, तो वो बहुत ज्यादा रोल होता है और बहुत थोड़ा समय लेता है वो ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए। Whereas in a crooked, मतलब अगर थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो सरफेस, तो वहां पे कैसा होगा, जैसे आप बॉल थ्रो करोगे तो वो एकदम से जाके रुकेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस कि वो कितने देर में स्टॉप होता है ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स टोटली ऑन द सरफेस एरिया, मतलब कौन से सरफेस पे आप थिंग्स को थ्रो करते हो। Understood? So this is, everyone understood the the three terms. What is work? Force and energy is required to do work. What is force? When we apply force, work is done. And what is force of friction? When we apply force to enroll something, the force of friction enables it to stop. This is known as force of friction. सबको यहाँ तक समझ गया है? What is gravity? Okay, now we will see what is gravity. Throw a ball up in the air. What happens after some time? It first raises up, then seems to stop and then falls back to the ground. अभी अगर हमने कुछ चीज ऐसे उछाले एयर में, आप बॉल को थ्रो करते हो या कोई भी चीज उछालते हो, तो वो वहीं पे ऐसा रहता है क्या, हैंग हो गए? नो, वो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम इट कम्स डाउन। क्यों ऐसा होता है? There is a gravitational force that is acting on our earth. अगर हम मून या स्पेस में जाते हैं तो वहां पे आप देखे होंगे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, they literally float. उनके पैर जैसे हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स चल सकते हैं, ठीक है। व्हाई? बिकॉज जो हमारा ग्राउंड फोर्स है वो हमको क्या करता है, खींच के रखता है, ठीक है। अपने ऊपर अप्लाई होता है, वो अपने को खींच के रखता है, एंड वी आर रेजिस्टिंग आवर फूट्स ऑन द ग्राउंड। पर अगर स्पेस और मून में आप जाते हो तो वहां पे देखना जो एस्ट्रोनॉट्स लिटरली फ्लोट, माने वो ऐसे उड़ते रहते हैं। क्यों? बिकॉज इन मून एंड इन स्पेस द ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। वहां पे बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता है मून और स्पेस में।
इसलिए वहां पे एस्ट्रोनॉट्स दे लिटरली फ्लोट। अगर वहां पे आप कोई चीज ऐसे उछालोगे, आइदर अ बॉल, अ पेन और व्हाटएवर, तो वो नीचे नहीं आएगा, इट रिमेन्स हैंगिंग, ऐसे करके हैंग होके रहता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, जीरो है। फोर्स जीरो है कहां पे, इन मून एंड इन स्पेस, नॉट इन अर्थ। In earth there is plenty of gravitational force that allows us to move, that allows anything we throw that comes down, because of that only. So this force is known as force of gravity or gravitational force. ठीक है, जो फोर्स चीजों को नीचे लाता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझा सबको यहाँ तक? So everyone understood what is work, what is